جب میرا اور تیرا ایک ہی رنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بری کی شاندار نظم۔ اس سے پہلے خاص بات سنتے ہیں، وقت اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائے تو واپس نہیں آتے۔ چلیے پھر سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ لڑکے دنگوں میں جس کو بہایا گیا، پوچھتا ہے ہمارا لہو چیخ کر، جب تیرا اور میرا، جب میرا اور تیرا، جب تیرا اور میرا ایک ہی رنگ ہے، جب میرا اور تیرا ایک ہی رنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا۔ پوچھتا ہے تلک سے وضو چیخ کر۔ یا میڈیا کے جو ساتھی ہیں، کل جب خبر لکھنا شروع کریں گے تو میں ان سے چاہوں گا کہ پرایوجت خبروں کے بجائے اس طرح کی چیزوں کو بڑھاوا دیں گے تو شاید سماج میں سوہارد اور بڑھے گا۔ میں پڑھتا ہوں کہ پوچھتا ہے تلک سے وضو چیخ کر، آمنے سامنے روبرو چیخ کر، پوچھتا ہے تلک سے وضو چیخ کر، آمنے سامنے روبرو چیخ کر، لڑکے دنگوں میں جس کو بہایا گیا، لڑکے دنگوں میں جس کو بہایا گیا، پوچھتا ہے ہمارا لہو چیخ کر، جب تیرا اور میرا، جب میرا اور تیرا، جب تیرا اور میرا ایک ہی رنگ ہے، جب میرا اور تیرا ایک ہی رنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے، جب میرا اور تیرا ایک ہی رنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے۔ میں سب سماج کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو پکارتا ہوں ان پنکتیوں میں کہ کون کہتا ہے آباد ہو جائیں گے، ایک گزری ہوئی یاد ہو جائیں گے، کون کہتا ہے آباد ہو جائیں گے، ایک گزری ہوئی یاد ہو جائیں گے، کون کہتا ہے آباد ہو جائیں گے، ایک دوجے کے خون کی رہی پیاس تو لڑکے دونوں ہی برباد ہو جائیں گے، کہ میرے بن تو ادھورا رہے گا صدا، تیرے بن میں ادھورا رہوں گا صدا، اس طرح سے تیرا اور میرا سنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے۔ نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو منتخب حدیث کتاب سے قرآن کریم کے فضائل سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن جسے یاد بھی خوب ہو اور پڑھتا بھی اچھا ہو، اس کا حشر قیامت میں ان معزز فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن شریف کو لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں، اور جو شخص قرآن شریف کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھاتا ہے، اس کے لیے
दोहरा अजर है। फ़ायदा अटकने वाले से मुराद वो हाफिज़ है जिसे कुरान शरीफ अच्छी तरह याद ना हो लेकिन वो याद करने की कोशिश में लगा रहता हो। नीज़ इससे मुराद वो देखकर पढ़ने वाला भी हो सकता है जो देखकर पढ़ने में भी अटकता हो लेकिन सही पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। ऐसे शख्स के लिए दो अजर है, एक अजर तिलावत का, दूसरा अजर बार बार अटकने की वजह से मुशक्क़त बर्दाश्त करने का है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, साहिब कुरान क़यामत के दिन अल्लाह ताला के दरबार में आएगा तो कुरान शरीफ अल्लाह ताला से अर्ज़ करेगा, उसको जोड़ा अता फरमाइए। अल्लाह ताला की तरफ से उसको करामत का ताज पहनाया जाएगा। वह फिर दरख्वास्त करेगा, ए मेरे रब और पहनाइए, तो अल्लाह ताला की तरफ से इकराम का पूरा जोड़ा पहनाया जाएगा। फिर वह दरख्वास्त करेगा, ए मेरे रब उस शख्स से राज़ी हो जाइए, तो अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाएंगे। फिर उससे कहा जाएगा, कुरान शरीफ पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, और इसके लिए हर आयत के बदला में एक नेकी बढ़ा दी जाएंगी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बाड़े में एक रात कुरान मजीद पढ़ रहे थे। अचानक उनकी घोड़ी उछलने लगी। उन्होंने और पढ़ा, घोड़ी और उछलने लगी। वह पढ़ते रहे, घोड़ी और उछली। हज़रत उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ख़तरा हुआ कि घोड़ी कहीं मेरे बच्चे यहया को वहीं करीब था कुचल न डाले, इसलिए मैं घोड़े के करीब जाकर खड़ा हो गया तो क्या देखता हूँ कि मेरे सर के ऊपर बादल की तरफ कोई चीज़ है जिसमें चिरागों की तरह कुछ चीज़ें रोशन हैं। फिर वो बादल की तरफ की चीज़ फ़ज़ा में उठती चली गई, यहाँ तक कि मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मैं सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं गुज़िश्ता रात अपने बाड़े में कुरान शरीफ पढ़ रहा था। अचानक मेरी घोड़ी उछलने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्न हुज़ैर पढ़ते रहते। उन्होंने अर्ज़ किया, मैं पढ़ता रहा, वो घोड़ी फिर उछली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्न हुज़ैर पढ़ते रहते। उन्होंने अर्ज़ किया, मैं पढ़ता रहा, फिर भी वो उछलती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्न हुज़ैर पढ़ते रहते। उन्होंने अर्ज़ किया, फिर मैं उठकर चल दिया। क्योंकि मेरा लड़का यहया घोड़ी के करीब ही था, मुझे ये ख़तरा हुआ कि घोड़ी कहीं यहया को कुचल न डाले, तो क्या देखता हूँ कि बादल की तरफ कोई चीज़ है जिसमें चरागों की तरह कुछ चीज़ें रोशन हैं। फिर वो चीज़ फ़ज़ा में उठती चली गई, यहाँ तक कि मेरी नज़रों से ओझल हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो फ़रिश्ते थे, तुम्हारे कुरान सुनने आए थे। अगर तुम सुबह तक पढ़ते रहते तो वो लोग भी उनको देख लेते, वो फ़रिश्ते उनसे छुपे न रहते। हज़रत सफ़वान बिन अस्साल मुरादी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप उस वक्त अपनी सुर्ख धारियों वाली चादर पर टेक लगाए तशरीफ़ फरमा थे। मैंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, मैं इल्म हासिल करने आया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तालिब इल्म को खुश आमदीद हो। तालिब इल्म को फ़रिश्ते अपने पड़ों से घेर लेते हैं और फिर इस कसरत से आकर ऊपर तले जमा होते रहते हैं कि आसमान तक पहुँच जाते हैं, और वह इस इल्म की मोहब्बत की वजह से ऐसा करते हैं जिसको यह तालिब इल्म हासिल कर रहा है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए किसी रास्ता पर चलता है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसे जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चला देते हैं, यानी इल्म हासिल करना उसके लिए जन्नत में दाखिला का सबब बन जाता है। फरिश्ते तालिब इल्म की खुश नोदी के लिए अपने पड़ों को बिछा देते हैं। आलिम के लिए आसमान और ज़मीन की सारी मखलूक़ात और मछलियाँ जो पानी के अंदर हैं सब की सब दुआएं मग़फ़िरत करती हैं। बिलाशुबा आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे 14वीं रात को चांद को सितारों पर फजीलत है। बिलाशुबा अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं, और अंबिया अलैहिस्सलाम दीनदार और दिलहम माल और दौलत का वारिस नहीं बनाते, वो तो इल्म का वारिस बनाते हैं। लिहाजा जिस शख्स ने इल्म दीन हासिल किया उसने इस मीरास में से भरपूर हिस्सा लिया।